Hello students, let us proceed to discuss the solution of question number 11 taken from exercise number 6.5 from our 6th chapter, that is a differential equation. Here we have given question number 11 as 1 plus x square dy by dx plus y is equal to e to the power tan inverse of x. First of all, we have to transform it in the form of a linear differential equation. Okay, कैसे? ठीक है, we know that there are two ways to present linear differential equation. First one is dy by dx plus py is equal to q. dy by dx plus py is equal to q. If we write y, then y should be present here. Means अगर हम dy by dx लिखते हैं, means the derivative of y with respect to x, then we have to write y here. And what about p and q? p and q should be the function of x. Okay, means जब यहाँ पे y रहेगा तो p and q are of functions of x, और या तो p and q are constant, या p and q constant रहेगा, या p and q are functions of x. अब यह ज़रूरी नहीं है, there are no any restriction that p and q both are functions of x, or p and q both are functions of, if p and q are both are functions of x और p and q both are constants. ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों कांस्टेंट हो या दोनों मीन्स p and q दोनों functions of x हो. p अज्यूम कीजिए कि p कांस्टेंट है, q x का फंक्शन हो सकता है, p x का फंक्शन है, q कांस्टेंट हो सकता है, या दोनों कांस्टेंट है या दोनों x का फंक्शन हो सकता है. This one is our first presentation. The second presentation is dx upon dy is plus dx upon dy plus px is equal to q. अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x आ रहा है. Okay, तो what about p and q? p and q should be the functions of y or constant. Okay, so let us change the given differential equation in the form of any two, in the form of linear differential equation as first or second, but here we have given dy by dx. Okay, so dy by dx बनाया है, dy by dx रेडी है, तो हमें क्या करना है, और देखो यहाँ पे जो dy by dx है उसका कोएफिशिएंट, मतलब वह अकेला है, अकेला मीन्स इन मैथमेटिक्स उसका जो कोएफिशिएंट है वह 1 होना चाहिए. Means to say that the coefficient of derivative term is always should be 1, वह हमेशा 1 होना चाहिए. कहाँ पे? in linear differential equation. Okay, तो यहाँ पे 1 plus x square है dy by dx, means हमें 1 plus x square को एलिमिनेट करना है, उसको रिमूव करना है, उसको वहाँ से हटाना है. तो क्या करेंगे हम, since 1 plus x square और dy by dx plus y is equal to e to the power tan inverse of x, ये हमें दिया हुआ है. हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव द कोएफिशिएंट ऑफ डेरिवेटिव टर्म. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 plus x square है, उसे हमें हटाना है. सो लेट अस डिवाइड बाई 1 plus x square. ओके, तो क्या करना है, 1 plus x square से हमें दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो वी हैव 1 plus x square अपॉन 1 plus x square. ओके, और क्या है, dy by dx है प्लस y अपॉन 1 plus x square है is equal to e to the power tan inverse of x अपॉन 1 plus x square है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक मिनट, एक गेट कैंसिल हो गया तो बच क्या गया, वी हैव dy by dx प्लस, अब यहाँ पे y है
तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है उसमें y प्रेजेंट होना चाहिए। देयर शुड बी प्रेजेंसी ऑफ y इन सेकेंड टर्म। देखिए ये तो पूरा प्योर x का फंक्शन है, इसमें y नहीं है। e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x, नो y टर्म प्रेजेंट। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई भी उसमें y नहीं है, तो y किस में है? इसमें है। तो इसे किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है? यहाँ पे y है तो y होना चाहिए। ए y कहाँ पे चला गया? यहाँ पे चला गया। बचा क्या? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Now we can compare this equation with anyone. यहाँ पे dy by dx है तो आप इससे हमें कंपेयर करना पड़ेगा। So dy by dx plus y p. So we have p is equal to 1/1 plus x square and q क्या है? q is equal to e to the power tan inverse of x upon 1 plus x square. ओके, प्लीज़ मेक अ नोट। अब हमें p और q मिल चुका है। p का यूज कहाँ पे है? टू फाइंड if, टू फाइंड इंटीग्रल फैक्टर। सो वी हैव p is equal to 1/1 plus x square. Next term is find if. if means integral factor, that is e to the power p. अब p को इंटीग्रेट करना है किसके रिस्पेक्ट में? सिंस p इज ए फंक्शन ऑफ x, p इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द फंक्शन ऑफ x, सो वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x. सो दिस वन इज इक्वल टू e टू द पावर p मीन्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, and this one is equal to e to the power 1 upon integration of 1 upon x square plus a square, integration of 1 upon x square plus a square dx is equal to 1 upon a into tan inverse of x upon a plus c. ये होता है तो 1 upon x square plus a square, 1 upon x square plus a square, a means 1 square. Okay, so we have e to the power 1 upon a means 1, so 1 upon 1 is 1 into tan inverse of x upon a means 1, so tan inverse of x. Okay, clear na? e to the power integral of 1 upon 1 plus x square dx is tan inverse of x. So if is e to the power tan inverse of x. So let us multiply by if in both the sides of the लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसमें? इसमें। ये जो आपने लास्ट में बनाया है दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी हैव dy बाई dx प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है if से। if इज e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x, दिस वन इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू और राइट हैंड साइड क्या है? ए वाला, दैट इज e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, एंड दिस वन इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x becomes e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x टू द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, और ये रहा हमारा यहाँ तक. ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है. लेट अस प्रोसीड. इफ वी ओपन दिस ब्रैकेट वी गेट e to the power e to the power tan inverse of x into dy by dx plus e to the power tan inverse of x into 1 upon 1 plus x square into y. ओके, अब इस फ्रैक्शन, इस एक्सप्रेशन को वी हैव टू चेंज इन डेरिवेटिव फॉर्म, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी में उसे कन्वर्ट करना है. ओके, e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x, e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू dy by dx plus e to the power tan inverse of x into 1 upon 1 plus x square into y. We have to transform it or we have to
राइट इट दिस एक्सप्रेशन into derivative of u into v. u into v that is product rule में हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है. कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. ओके, प्लीज मेक अ नोट. सो देखो ये यहाँ पे e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x है dy by dx प्लस e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x into 1/1 plus x square can be written as d by dx of u into v. u means e to the power tan inverse of x into y is equal to e to the power tan inverse of x to the whole square upon 1 plus x square. ऐसा आया समझ में? तो मैंने क्या किया, इसको इस जो एक्सप्रेशन है इसे हम u इंटू वी फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. कैसे? d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, दिस वन इज u एंड दिस वन इज v. u मीन्स e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, v मीन्स y, सो dy बाई डी एक्स प्लस v मीन्स y इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. ये पूरा क्या है? डेरिवेटिव ऑफ u है. कैसे है चेक करते हैं. देखो d बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स ये वाला e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x एंड वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज उतना ही होता है, दैट इज e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या? तो ये इतना पूरा यहाँ पे है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है. e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू वाई, e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x, y तो पहले बताया, दैट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, v है y, u मीन्स डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है. तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है इसे हम कैसे लिख सकता हूँ? d by dx of u into v. Okay, we can present this expression in the form of derivative of u into v, that is product rule of derivative u into v फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा u into v का प्रेजेंटेशन था. ओके, सो लेट अस टेक द इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द साइड्स. अब हमें क्या करना होता है? टेक इंटीग्रेशन ऑफ द e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू वाई ऑफ बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x. विद रिस्पेक्ट टू x मीन्स द सिंस द p किस में है? ये पूरा का पूरा p किस में था? x का फंक्शन था. सो वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ बोथ द साइड्स e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x to the whole square upon 1 plus x square, 1 plus x square. And we know that integral is the opposition of derivative. Integration is the opposite of derivative. So integration of derivative of a function with respect to x is the given function, means e to the power tan inverse of x into y is equal to integral of e to the power tan inverse of x to the whole square upon 1 plus x square. इतना मतलब इसका काम हो चुका है. दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x इज द गिवन फंक्शन. ये पूरा फंक्शन यहाँ पे आ जाता है. अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है. ओके, फॉर दिस इफ वी अज्यूम tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t, taking derivative of both the sides with respect to x, we get 1/1 plus x square dx is equal to dt. देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 1/, अरे यार dx नहीं लिख, dx. ओके, dx with respect to x dx. ओके, so 1/, we can write 1 here. तो 1/1 plus x square dx इतना किसके इक्वल होगा? dt के इक्वल होगा when we assume tan inverse of x is equal to t. ओके, तो दिस वन इज इक्वल टू tan e to the power tan इनवर्स इसको आपने क्या assume किया है? t.
टू द होल स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या है, डी टी है, सॉरी क्या है उसका, डी टी। आगे समझ में भाई, e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x टू द होल स्क्वायर था, वी एज्यूम tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t, सो वी गेट e टू द पावर t टू द होल स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx is equal to dt. Okay, this one is equal to e to the power t dt e to the power t to the whole square. Okay, 1 minute, please write down till here, and e to the power t, so this one can be written as ऐसा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t इंटू e पावर t dt. ओके, इफ वी अज्यूम e पावर t इज इक्वल टू p, e पावर t इज इक्वल टू p, देन डेरिवेटिव ऑफ बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट e टू द पावर t dt इज इक्वल टू dp. ओके, सो दिस वन इज इक्वल टू e टू द पावर t को आपने क्या अज्यूम किया है, p अज्यूम किया है, और e टू द पावर t dt किसके इक्विवेलेंट है, dp के इक्विवेलेंट है. ओके, सो p टू द पावर 1. ओके, क्लियर ना. e टू द पावर t को आप यहाँ से भी इसको e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ, इसको आप ऐसा लिख सकते थे, e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x करके भी आप फाइंड आउट कर सकते थे. ओके, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, e to the power t dt को dp and e to the power tp, this one is equal to p square upon 2 plus c, p square upon 2 plus c. ओके, तो उसके बाद क्या करना है, p that is p means e to the power, p is e to the power t to the whole square upon 2 plus c. देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू वाई, लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड यहाँ पे है, दैट इज e टू द पावर t टू द होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c. दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. ओके, 1 अपॉन 2 e टू द पावर t, e टू द पावर t को t e टू द पावर t मीन्स e पावर t मीन्स tan इनवर्स ऑफ x टू द होल स्क्वायर प्लस c. ओके, इतना e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल टू थोड़ा सा क्लियर ना, e टू द पावर t मीन्स e टू द पावर t का मतलब क्या, t का मतलब है, t को आपने क्या अज्यूम किया है, t इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, सो वी हैव e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x इंटू वाई. सो सिंस वी हैव टू फाइंड y इज इक्वल टू 1/2 इंटू e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x टू द होल स्क्वायर अपॉन e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x, इससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस c अपॉन e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x. देखो एक तो गया, यहाँ पे e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x है, यहाँ पे e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x टू द होल स्क्वायर है, एक टर्म गया, बचा क्या, 1/2 इंटू e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस c इंटू e टू द पावर c इंटू a, इसको ऊपर भेजोगे तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस tan इनवर्स ऑफ x. सो y इज इक्वल टू इतना, y इज इक्वल टू 1/2 e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस c इंटू e टू द पावर माइनस tan इनवर्स ऑफ x. यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, तो 1/2 e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, ए पॉजिटिव था, ऊपर गया तो नेगेटिव हो गया. ठीक है, ये रहा आपका आंसर, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. सो फाइनल आंसर इज
y is equal to 1 by 2 e to the power tan inverse of x plus c into e to the power minus tan inverse of x. Okay, this one is your answer. Okay, e to the power tan inverse of x divided in both the sides, then e to the c upon e to the power tan inverse of x goes to upward side, that is in numerator, becomes e to the power negative tan inverse of x plus c. Okay, please make a note. Clear?